السلام علیکم مفتی صاحب، میں آڈیبل ہوں؟ وعلیکم السلام. جی، پہلی بات آپ نے جو اس کے پہلے آرگومنٹ دیا اس کے پکش میں کچھ رکھنا چاہوں گا. جی، رکھ سکتا ہوں؟ بولیں. جی، اصل میں ایسا بھی تھا کہ جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے تب بہت عام جنتا کو نالج کا پریویلیج نہیں تھا. بہت جو ہائی قسم کے لوگ تھے ان کو ہی پریویلیج تھا. اور اگر کوئی آرگومنٹ رکھے کہ بائبل سے لی گئی ہے تب وہ عربک میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہوا تھا تب تک. تو یہ بھی ایک آرگومنٹ پاسبل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے نہیں لکھے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے. جی چلیے اپنا سوال رکھیں. جی جی سوال مفتی کیا صاحب، جی میں پہلے سوال ہے کہ میں دعویٰ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اپنے آپ ہی دین سیکھا ہوں. پہلے گمراہی میں تھا، ایتھیس قسم کا آدمی تھا، پیدائشی مسلم ہوں پر ایتھیس بن گیا تھا. آپ لوگوں کے کلام سن سن کے میں مسلم بنا ہوں. اب خود اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے بیسک کون کون سے چیزوں کا نالج ہونا چاہیے دعویٰ سٹارٹ کرنے سے پہلے؟ ایک مطلب اگر روڈ میپ بتا دیجیے کہ یہ چیزیں مجھے پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. محض قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں بلکہ کوئی ایک معتبر تفسیر آپ لے، اس کو پورا پڑھ لیں شروع سے لے کر آخر تک. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ جب قرآن پڑھ لیں گے تو بہت سی حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ بنیادی ہے، یہاں سے بات شروع ہوگی. آپ کے جو عقائد ہیں، یعنی چونکہ اعتراض جو ہے وہ تو عقیدے کے اوپر ہوگا، تو obviously بات ہے کہ کچھ باتوں کے دلائل آپ کو آنے چاہیے. مثلا توحید کی دلیل آپ کو آنی چاہیے، رسالت کی دلیل آپ کو آنی چاہیے، قرآن کے پریزروڈ ہونے کی دلیل آپ کو آنی چاہیے، اور اسلامک مورالٹی مثلا ملٹیپل میرج یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، ان موضوعات کے اوپر آپ کے پاس مٹیریل ریڈی ہونا چاہیے. اسلام میں دعوت دینا یا داعی بننا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، هذه سبیلی، اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں داعی ہوں. لیکن آگے جو لفظ ہے وہ ہے علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ. یہ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہو، یہ ہے بصیرت. اگر آپ اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اسلام ہی کو نہیں جانتے اور سمجھتے تو پھر حشر کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ اسی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اس راستے میں آتے ہیں اور راستہ چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس راستے میں جب رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے، مثلا ایک آدمی بغیر ٹریننگ کے آرمی جوائن کر لے تو گولی سب سے پہلے اسی کو لگنی ہے بھائی، اور سب سے پہلے پیٹھ بھی اسی کو دکھانی ہے، وہی دوڑے گا. لیکن اگر ایک آدمی ٹریننگ کر کے آرمی جوائن کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے یا اپنے مذہب و ملت کے لیے شہید ہو جائے، جان دے دے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بصیرت پیدا کریں اور اس کے بعد پھر اس راستے میں آئیں. چلو بھائی جی ٹھیک بہت ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بس میں ایک ہی سوال. اچھا ٹھیک ہے، پھر کبھی آؤں گا پھر. پیور توحید. جی اچھا حضرت، اب میں ایک درخواست بھی کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہیں ایڈیٹر سے یہ کہہ دیں کہ اس کلپ کو اتنا ہی کاٹ کے الگ سے چلا دیں، بالکل صرف تھمبنیل بھی ایسی ہوں کہ جس نے دعویٰ شروع کرنا ہے وہ کیا کرے. کیونکہ ہر دوسرے یا تیسرے ہفتے میں کوئی نہ کوئی کالر آتے ہیں جو یہی پوچھتے ہیں کہ ہم نے دعویٰ کیسے سٹارٹ کرنا ہے، ان کو بات ریپیٹ کری جاتی ہے بار بار. بس تو اب آپ یہ نے کہہ کہہ دیا، دیں حسن بھائی. ہمارے ایڈیٹر صاحب سن ہی رہے ہوں گے تو وہ کاٹ دیں گے انشاءاللہ. تو حضرت آپ بیک اسٹیج دیکھ رہے ہیں، ایک بار نظر مار دیجیے تو کس کو لوں آپ بتا دیجیے. اچھا تو کسی کو بھی لے لیں. پنکج بینرجی اس کو ایک مرتبہ لے لیجیے، چونکہ اگرچہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں نے اپنی بات رکھ دی اور اس کے بعد لیکن چونکہ آ گئے ہیں دوبارہ تو جی تھینک یو سر، مجھے دوبارہ آپ نے ٹائم دیا. بس میرا یہی تھا سر کہ کیا ایویڈنس ہے سر کہ مون سپلٹنگ سچ میں ہوئی تھی؟ یہی پہ بات ہاں. تو کٹ گئی تھی. اب آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کا انٹرنیٹ بھی سپلٹ ہو گیا تھا تو اس لیے جو ہے جب یہ اسٹریم ختم ہو جائے گی تو اس حصے کو آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے اپنی بات وہاں مکمل کر دی ہے.
अच्छा एक्चुअली सर मैं तो सुन नहीं पाया था, मेरा फोन रिस्टार्ट हो गया था, तो ये सुन प्रॉब्लम। लीजिए ये भी कह रहा हूँ कि ठीक है, अब सुन मैं लीजिए उस पे जो काउंटर आर्गुमेंट होगा वो मैं अगले स्ट्रीम में फिर रख दूंगा, ठीक है अगले सर? स्ट्रीम में, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मैं ओके, सिर्फ इतना बता दूं जी, कि जी। नेक्स्ट स्ट्रीम में आप मास ट्रांसमिशन की इनवैलिडिटी को साबित करेंगे। ये लफ्ज याद रखिएगा, मास ट्रांसमिशन की इनवैलिडिटी को साबित करेंगे। ये क्या होता है? अभी आप तहकीक करें, रिसर्च करें, 1 हफ्ता है। ओके ठीक है जी भाई। होमवर्क भी हमें देना पड़ता है। अच्छा जी, क्या नाम है ये? अर्शान अर्शान टीवी। टीवी। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। सर 2 क्वेश्चन थे, बट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। जी सर पहला क्वेश्चन मेरा ये, जैसे कि मैं कुरान में जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं ज्यादातर वजू की हालत में नहीं है या फिर हम नापाकी में, तो मोबाइल पे कुरान पढ़ सकता हूँ मैं। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा है आप सर। ऐसा करिए, नहीं रहने दें, दूसरा रहने दें, पहले का जवाब दे देते हैं। ऐसा है कि मुफ्ती मिनाज साहब की स्ट्रीम होती है सैटरडे और संडे मॉर्निंग में 11 बजे, आप वहां चले जाएं, जरूर आपको दूसरे सवाल भी वहीं के ताल्लुक से होगा। ठीक है भाई, जी यहाँ पे सही दूसरा सवाल सवाल चले, ठीक है, सर। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ है अहमद अली ज़ई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मैं पाकिस्तान से अहमद जहांगीर बात कर रहा हूँ। थोड़ा जोर से। जी मेरी आवाज़ साफ आ रही है अब? थोड़ा जोर से बोलिए बस। जी मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ और एक तवील अरसे से आपकी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है माशाल्लाह। और मेरी तो अब एक आदत सी बन गई है कि आपको ही मुसलसल सुनता हूँ। मुझसे मैं आपकी जितनी भी स्ट्रीम जब से शुरू हुई है मैं वहाँ से देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने आपकी पहली लाइव स्ट्रीम देखी थी जिसमें आप ईमेल्स के ज़रिए से सवालात ले रहे थे ना। तो वहाँ पर एक सवाल आया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो चीज़ यानी है ना, मुझे वो सवाल ही भूल गया कि मुझे सवाल ही भूल गया वो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। कि 2-3 मरतबा दरूद पढ़े हो तो याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मुझसे तो आप भाई किसकी जरूरत पढ़ लीजिए। कुदरत के मुताबिक सवाल था कि कुदरत के मुताबिक सवाल था कि हाँ जी, मुहाल का सवाल था, मुझे याद आ गया। जी मतलब सवाल ये था कि मुहाल की 3 किस्में होती हैं, मुहाल आदी, मुहाल शरई और मुहाल उर्फी। तो वहाँ पर आपने कुछ तफसील की थी, मुझे वो अगर आप दोहरा दें तो हल हो जाएगा। असल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं कि जो जाते नहीं हैं ज़हन से, वो वहाँ पर आपने जी दरूद पढ़ने का जो नुस्खा मैंने अभी आपके सामने बताया है और उसका फायदा भी हुआ जी ये उसमें तो है कि आदमी बोलते बोलते भूल जाए कि क्या बोलना था, लेकिन उसने 10 साल पहले क्या बोला उससे दरूद पढ़ने से याद नहीं आता। समझे? तो उसके लिए नुस्खे दूसरे होंगे। तो अब मुझे बहरहाल आपने कहा कि मैंने मुहाल की 2-3 किस्में की, मुहाल अक्ली, मुहाल आदी, मुहाल उर्फी, राइट? मुहाल शरई थी, मुहाल शरई, मुहाल आदी और मुहाल उर्फी। मेरे ख्याल से मुझे खुद आप उस स्ट्रीम का रेफरेंस दें मुझको। और सबसे पहली स्ट्रीम है, सबसे पहली स्ट्रीम यूट्यूब पर कि फेसबुक पर? यूट्यूब पे, सब यूट्यूब पे। ओके, नंबर 1 है उसका नंबर? जी 1 है। ओके, और तो आप एक काम करें, मुझे ईमेल करें उस स्ट्रीम का लिंक भी और टाइम कि किस जगह मैंने वो बात की है, तो फिर मैं इंशाल्लाह अगली मर्तबा आप आएंगे तो मैं समझा दूंगा। जी मुझसे मेरे ज़हन में एक सवाल था, अगर वो आप सुन लें तो शायद उससे मुझे सवाल। वो ये सवाल था कि जैसे एक बोलने दे हाँ। जैसे ये मशहूर है कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कुदरत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कादिर हैं कि वो इतना बड़ा पत्थर बना लें कि वो खुद भी ना उठा सकें। अगर हम कहते हैं कि कादिर हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुदरत तो साबित कर दी, लेकिन साथ आजिज़ भी साबित हो गया, अल्लाह का आजिज़ होना भी साबित हो गया कि वो पत्थर नहीं उठा सकते। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आजिज़ की नफ़ी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जो खुद भी नहीं उठा सकते, तो फिर यहाँ से आजिज़ की तो नफ़ी होगी, लेकिन कुदरत का जो है ना वो साबित नहीं हो सकी। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी स्ट्रीम पाबंदी से देख रहे हैं।
नहीं मुझसे मैं तो मैंने एमफिल कर रहा हूँ, थीसिस भी मैंने लिखने हैं, लेकिन मैं इतनी सुस्ती कर रहा हूँ थीसिस लिखने में भी कि मैं मुसलसल, हालांकि मैं मुदर्रिस हूँ, लेकिन मुसलसल मैं आपकी ही स्ट्रीम देखता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? और मैं मंतिक पढ़ाता हूँ और इसी तरह तफसीर कौन सी पढ़ा रहा किताब मंतिक में? हूँ। मंतिक में मेरे पास तस्हीलुल मंतिक है तफसीरुल मंतिक, ओके। और तफसीर पढ़ा रहा हूँ सालिसा माहद में। इसी तरह ऊला के अंदर अरबी, मेरे पास ज्यादा अरबी के ही बनते हैं। मंतिक की आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? मुझसे हमने तो यहाँ पर सबसे जो हमारी सानिया में पढ़ाई जाती है तहसीरुल मंतिक है, छोटी सी किताब है, छोटा सा किताबचा है। फिर उसके साथ हमें ईसा गोजी पढ़ाई जाती थी, मिरकात पढ़ाई जाती थी, और फिर सालिसा में जाकर हमें शरह तहजीब पढ़ाई जाती थी, और राबिया में कुतबी का कुछ हिस्सा पढ़ाया जाता था। हमसे पहले सुल्लम और ये मेब्जी शरीफ ये सारी निकल गई थी। जी जी। अच्छा जी, ठीक है। ये सारी तफसीली इसलिए कि अब जो आप मैं कहूँगा इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ में आना चाहिए। जी जी। हम खुदा को कादिर मुतलक मानते हैं कि कादिर मुक़य्यद? कादिर मुतलक। कादिर मुतलक मानते हैं। अच्छा, जो आजिज होगा, जैसे मैं और आप आजिज हैं, हम आजिज मुतलक हैं कि आजिज मुक़य्यद? हम आजिज मुक़य्यद हैं। हम आजिज मुक़य्यद हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बड़ी चट्टान है कि जिसको एक इंसान ना उठा सके, तो उसको आप ये कहेंगे ना कि ये आजिज मुक़य्यद है। जी जी। है ना, मतलब दूसरे काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर चला सकता है, फोन उठा सकता है, लेकिन चट्टान नहीं उठा सकता। जी जी। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि वो खुदा के जो कादिर मुतलक है, क्या ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ना उठा सके? तो ऐसा पत्थर जिसको वो ना उठा सके, ये कुदरत मुक़य्यदा हुई कि नहीं? यानी ऐसा खुदा ऐसा पत्थर बना दे जो वो खुद भी ना उठा सके। जी बिल्कुल, कैद है यहाँ पर। ये कैद हो गई ना, ये कुदरत मुक़य्यदा है। जी जी बिल्कुल ठीक। अब इस सवाल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये सवाल कर रहे हैं, या लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कादिर मुतलक कादिर मुक़य्यद हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे बताएं कि क्या कादिर मुतलक कुदरत मुतलका रखते हुए कादिर मुक़य्यद हो सकता है? ये सवाल सही है? नहीं, इस दोनों मतलब मुकद्दमों में ही तजाद है। मुकद्दमों में तजाद है ना, और इज़ा तारज़ा तसाक़ता हो गया ना काम। जी सब मुझे ये तजाद बयान करना नहीं आता था, जैसे आपने माशाल्लाह मुफस्सलन बयान किया और आसान अल्फाज में। मुझसे ये ताबीर नहीं हो पाती थी, तो तजाद का मुझे समझ आता था, लेकिन ये ताबीर नहीं हो पाती। और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह सर, जज़ाकुमुल्लाह। चलें जी, ठीक। वालेकुम सलाम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत